أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ناظرین الریحان تجوید سیریز میں آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ آج ہماری رمضان کی ٹرانسمیشن کے تجوید سیریز کا آخری سبق ہے جو ہے سبق نمبر 30، اور انشاءاللہ و تعالی ہم دیکھتے ہیں آج ہم اس سبق میں کیا سیکھیں گے اور کون سا قاعدہ اور کون سے مخرج کے بارے میں جانیں گے۔ تجوید سیریز میں آج ہم تجوید کے سیکشن میں پڑھیں گے قاعدہ نمبر 29 جو ہے البسملہ۔ البسملہ جو ہے یہ کیا ہے؟ البسملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اتنا لمبا کہنے کی بجائے جب ہم نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھیں تو ہم بسم اللہ نہیں کہتے، بسملہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اگر کسی کو کہیں گے کہ اس سے پہلے بسملہ پڑھو تو اس کا مطلب یہی ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ یہ ہر ایک پہ فرض ہے کہ ہر سورہ کے آغاز میں بسملہ پڑھی جائے، یہ فرض ہے۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا نا کہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ لکھی ہوتی ہے وہاں پر، ہے نا؟ تو کیا لکھا ہوتا ہے؟ بسملہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پہلے وہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورت کا آغاز کرتے ہیں، سوائے ایک سورہ کے، اور وہ کون سی ہے؟ سورہ التوبہ۔ اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں بات کریں گے۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ بسملہ کے کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ بسملہ کا مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھنا، شروع کرنا اللہ کے نام سے، ٹھیک ہے؟ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اور بسملہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو پوری طرح سے سمیٹ لیں، پوری طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کا اجر عطا فرمائیں۔ تو اب آتے ہیں واپس، جو میں نے آپ سے کہا تھا ہم بات کریں گے سورۃ توبہ کے بارے میں۔ تو سورۃ توبہ سے پہلے بسملہ کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ اس کے بارے میں کافی ساری رائے ہیں، اور زیادہ تر جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ قرآن کا نزول ایسے ہی ہوا تھا، قرآن میں اس سورت کا نزول سورہ توبہ ایسے ہی نازل ہوئی تھی۔ دوسرا جو اس کا جو اوپینین ہے وہ ہے کہ کیونکہ اس میں منافقوں کو جو ہے ان کے لیے سزاؤں کا اعلان ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سختی سے ان سے سزاؤں اور ان کے عذاب کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو مناسب نہیں کہ اس کو بسم اللہ یعنی اللہ کی رحمت اور رحیم اور رحمان ہونے سے شروع کیا جائے۔ اور تیسرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ سورہ انفال جو سورہ توبہ سے پہلے کی صورت ہے، وہ اور سورہ توبہ ایک ہی صورت ہے۔ سورہ توبہ جو ہے وہ سورہ انفال کی آگے کنٹینیویشن ہے، جب ہوتی تھی نا وہی۔ تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا کرتے تھے کہ آپ اس سورت کو یہاں پر رکھ دو، اس سورت کو یہاں رکھ دو، اس آیت کو اس سورت میں لگا دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت سے پہلے بسملہ نہیں لکھوائی، تو ہمیں بھی اسی کے اوپر قائم رہنا چاہیے کہ کیونکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت سے پہلے بسملہ نہیں لکھوائی، تو ہم بھی اس سورت سے پہلے بسملہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک؟
अब जो है अल-बस्मला, इसको पढ़ने के जो हैं वो बहुत से तरीके हैं। पहले देखते हैं, जब हम कुरान शुरू करने लगते हैं तो सूरत के आगाज में बस्मला पढ़ने के क्या तरीके हैं। सूरत के आगाज में बस्मला पढ़ने के 4 तरीके हैं। नंबर 1, आउज़ बिल्लाह जो है अल-इस्तिआज़ा और बस्मला और सूरत की पहली आयत को मिलाकर पढ़ा जाए, रुका ना जाए, एक के बाद एक के बाद एक पढ़ा जाए। फिर दूसरा तरीका ये है कि आउज़ बिल्लाह यानी अल-इस्तिआज़ा, बस्मला और सूरत की पहली आयत को के बीच में तीनों के दरमियान वक्फा दिया जाए। तीसरा तरीका ये है कि अल-इस्तिआज़ा अलग पढ़ा जाए, वक्फा दिया जाए, उसके बाद बस्मला और सूरत की पहली आयत को मिला के पढ़ा जाए। चौथा तरीका ये है कि हम अल-इस्तिआज़ा और बस्मला को मिला के पढ़ें और जो सूरत हम शुरू कर रहे हैं उसमें और इनमें वक्फा दें। तो ये चारों जो सूरतें हैं, नंबर 1 तरीका, नंबर 2, 3, 4, ये सब सही हैं। हम इनमें से कोई भी तरीका अपना सकते हैं और हम करते हैं, इनमें से कोई एक तरीका ज़रूर करते हैं। आप भी देखिएगा, जब आप शुरू करने लगें तो आप अपने तरीके को जानिएगा कि आप किस तरह से पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं इसको ज़रा तफ़सील से जानते हैं क्या है। देखें, आऊज़ु बिल्लाह, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह और फिर ये समझें जैसे हमने जो है सूरत 3 शुरू करनी है। तो हमने क्या करना है, अल इस्तिआज़ा और बस्मला और फिर सूरत शुरू कर देनी है, एक ही सांस में, रुकना नहीं है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीनी वज़्ज़ैतून। तो ये है एक ही सांस में तीनों को पढ़ना। अब देखते हैं दूसरा कायदा। दूसरा कायदा क्या है, आउज़ बिल्लाह वक्फा देना, बिस्मिल्लाह वक्फा देना और फिर सूरत को शुरू करना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीनी वज़्ज़ैतून। लेकिन दोनों के दरमियान में वक्फा था। तीसरा कायदा है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को मिलाना और फिर रुकना और फिर पहली आयत उस सूरत की पढ़ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीनी वज़्ज़ैतून। और चौथा कायदा है, अल इस्तिआज़ा के बाद रुक जाना, वक्फा देना और बस्मला और सूरत की पहली आयत को मिलाना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीनी वज़्ज़ैतून। ठीक है, तो इनमें से आप कोई कोई सा भी कायदा जो है वो अपना सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। अब ये तो था जब हम एक सूरत को शुरू करते हैं। अब जब हमने उस सूरत को ख़त्म कर लिया और फिर दूसरी सूरत को शुरू किया, तो उसके बीच में बिस्मिल्लाह कैसे पढ़ेंगे? यानी 2 सूरतों के दरमियान में बस्मला पढ़ने के तरीके।
लेकिन 2 सूरतों के दरमियान बसमला पढ़ने के 4 तरीकों में से 3 की इजाज़त है और 1 तरीके की इजाज़त नहीं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मैं चारों तरीके आपको बताऊंगी और फिर आपको बताऊंगी कि कौन सा जो तरीका है उसकी हमें इजाज़त नहीं और क्यों नहीं, मैं उसकी वजह भी आपको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे। नंबर 1 जो तरीका है वो क्या है। हमने एक सूरत ख़त्म की, इख्तिताम सूरा, ठीक है, सूरा ख़त्म हो गई, फिर हमने बसमला पढ़ी और फिर सूरत का दूसरी सूरत की शुरू की आयत पढ़ी, उसका आगाज किया। कैसे? जैसे हमने शुरू के लिए कायदा पढ़ा था ना, उसी तरह कोई वक्फा नहीं इन तीनों के बीच में। सूरत खत्म की, सांस नहीं तोड़ा, बसमला पढ़ी और फिर अगली जो सूरत थी उसकी पहली आयत पढ़ दी। ये तरीका सही है। फिर दूसरा तरीका जो है वो क्या है? वो उसी तरह से है कि पहले जब हमारी सूरत एक खत्म हो गई, हम रुक गए, हमने सांस तोड़ दी, फिर बसमला पढ़ी, फिर सांस तोड़ दी और फिर सूरत का आगाज किया। ये तरीका भी सही है। फिर तीसरा तरीका कौन सा है? वो है सूरत खत्म हो गई, हमने उसकी आखिरी आयत पढ़ी, हम रुक गए और फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह जो हमने पढ़नी थी वो और सूरत का आगाज हमने एक साथ किया। पहले बसमला पढ़ ली, कोई वक्फा नहीं दिया और उसकी पहली आयत पढ़ दी। ये भी सही तरीका है। अब चौथे तरीके के लिए तैयार है, जो हमें बिल्कुल नहीं करना, और अगर हम करते हैं तो हमें ये नहीं करना और हमने अपने ऊपर चेक रखना है। चलिए अब हम देखते हैं। पहला जो कायदा था वो कौन सा था कि तीनों को मिलाकर पढ़ना। कौन से तीनों को? इख्तिताम सूरा, बसमला और सूरा का आगाज एक साथ एक ही सांस में करना। अब कुछ लोगों की माशाल्लाह लंबी सांस होती है, वो कर सकते हैं। अमूमन ये होता है कि ये जब हम हदर पढ़ते हैं ना तेज तेज, जैसे आपने देखा होगा तरावीह में जब इमाम पढ़ते हैं, तो फिर वो इस तरह से सूरतों को जो है इख्तिताम सूरा, बसमला और आगाज सूरा को मिलाकर पढ़ते हैं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। तो ये क्या किया हमने? हमने तीनों को मिला दिया। आखिरी आयत कौन सी थी सूरह अल काफिरून की? लकुम दीनुकुम वलिय दीन। उसको बिस्मिल्लाह से मिला के फिर बिस्मिल्लाह को सूरह नस्र के पहली आयत से मिलाकर पढ़ दिया। ठीक है, ये हमारा पहला कायदा था। अब हमारा दूसरा कायदा था कि तीनों को अलग अलग पढ़ना। देखें, जब आखिरी आयत है वो पढ़ के वक्फा देना, फिर बसमला पढ़ के वक्फा देना और फिर पहली आयत पढ़ देना। लकुम दीनुकुम वलिय दीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। अब हम चलते हैं अपने अगले हिस्से की तरफ, जो कि है मखारिज। आज हम अपने मखारिज के पार्ट का आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे, जो कि अल-लिसान का जो है हिस्सा था, और वो है तरफुल लिसान। और तरफुल लिसान में हमने क्या करना है? तरफुल लिसान में हमने जा सीन सौद पहले कर लिया, ता दाल पा कर लिया, नून रा कर लिया। अब हम करेंगे
सा, ज़, थ, ज़ाल और वा। ठीक, हमारा जो था वो आखिरी हिस्सा रह गया था। तो सा और ज़ाल हम कर चुके। इंशाल्लाह आज हम वा जो है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमने सब मखरिज कर लिए थे और आज हम जो है वो इंशाल्लाह व ताला बिइज़्निल्लाह वा जो है उसका मखरज करेंगे। तो मखरज वा, इसको कैसे निकालते हैं? वा को जुबान की नोक यानी तरफुल लिसान, ये देखें, बिल्कुल सर नहीं, उसकी नोक थोड़ा से जो सर के पीछे का ज़, ज़, तो जुबान की नोक जब सामने के ऊपर के दांतों के किनारे से लगाकर जुबान को ऊपर उठाने से हर्फ वा अदा होता है। ठीक है, बोले आपने जाल पढ़ा था ना, ज, अब इसी को हमने मोटा कर देना है। कैसे? जुबान उठा देनी है पीछे से, वा, ज, वा, ज, वा, जाल, वा। ये देखें, सेम पिक्चर है जो हमने अपनी पिछली दो इस असबाक में देखी। जुबान सामने से नजर आनी चाहिए, देखिए नजर आ रही है, और तरफुल लिसान ज़बान का जो नोक है वो हम लेके जाएंगे सामने के ऊपर के दांतों के किनारों की तरफ, और ज, 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 फिर जब हमें आ गया तो हमने क्या करना है? जुबान पूरी जो है वो पीछे से ऊपर उठानी है। वाह, क्योंकि वाह हमको अगर याद हो तो ये मोटे हरूफ में से है ना, तो इसको फिर हम मोटा पढ़ेंगे। वा, ज़ बारीक है, ज़ाल, वा मोटा हो गया, कोई मुश्किल नहीं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। अब हम वा की मिसालें देख लेते हैं। पहली मिसाल, हाफिज़ातुल लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। देखिए, हा, हाफी, वा, वा, ये हाफी जा नहीं है, ठीक है। हाफिज़ातुल लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह, हफ़िज़ल्लाह। दूसरी मिसाल, वल्लिन, अब वा, वी, वी, वल्लिन ज़ी सलासी शुअब, ظل ذي ثلاث شعب، ظنوا كما ظننتم، ظ ظ ظنوا كما ظننتم। वा की अदायगी में जो हम गलतियां करते हैं हम वो देख लेते हैं। वही वाली बात, वाह है ना, मोटा है, पुर पढ़ना है, तो क्या करते हैं? इसको जाल की तरह पढ़ते हैं। बहुत सुस्ती आती है, जुबान पीछे से ऊपर करें या फिर प्रैक्टिस करें, फिर थक जाते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था कि कोई भी, खैर ये तो एक आम कायदा है कि कोई भी चीज़ मेहनत के बगैर हासिल नहीं होती। तो ये तो अल्लाह सुब्हाना व तआला का हम कलाम पढ़ रहे हैं उसको खुश करने के लिए, तो अल्लाह की खुशनुदी भी तो ऐसे हासिल नहीं होगी ना। आपको ट्राई करनी पड़ेगी, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको, याद है मैंने कहा था, जबड़े थकाने पड़ेंगे, अपने गालें थकानी पड़ेंगी, आपकी नींदें जो हैं आपको कुर्बान करनी पड़ेंगी, आपको सोचना पड़ेगा मुझसे क्यों नहीं निकल रहा, आपको दुआएं करनी पड़ेंगी, आपको अपनी टीचर के साथ में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको सारा दिन एक ही लेटर के ऊपर जो है वो मेहनत करनी होगी। अगर आप मुख्तलिफ लेटर्स पे काम कर रहे हैं ना तो वो थोड़ा ये हो जाता है, आप डिवाइड हो जाते हो, लेकिन एक ही लेटर को अगर हम एक बार कंसंट्रेट करके उसको कर लें ठीक, तो फिर वो
आसानी से ठीक होता है। ठीक है, तो ये वा है ना, तो इसको कैसे पढ़ना? जाल। अफा वा है ना, अफा वा, तो कैसे पढ़ना? अफजल तुम तफक्कहून। अफजल, जल तुम, और ये है क्या? वल, वल, वेल, वल। कितना फर्क है ना? वेल बारीक है, वल मोटा है, पुर है, तो इसको मोटा पढ़ना है, पुर पढ़ना है। अफज़लतुम तफक्कहून। अच्छा, दूसरी गलती क्या होती है? जब इस पर सुकून हो तो झटके से पड़ जाते हैं, इसको हम कलकला कर जाते हैं। वमन अव, वमन अव, अव, अव नहीं है, अव नहीं है, अव, अव। वमन अवलमु, अवलमु, वमन अवलमु, अव, अव, अव। ओके, अब गलत है क्योंकि वह कलकला का हर्फ नहीं है। वमन अवलमु। ठीक, तो हमने ये गलतियां नहीं करनी इंशाअल्लाह व ताला बिइज़्निल्लाह। तो इसके साथ ही हमारा ये सीरीज का जो आखिरी सबक 30 था, 30 था, वो ख़त्म होता है, इख्तिताम को पहुंचता है। अल्हम्दुलिल्लाह थुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और वमा तौफिकना इल्ला बिल्लाह, और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के सियाम, क़ियाम, हमारी हमारी नमाज़ें, हमारी दुआएं, हमारे नेक अमाल जो है वो कबूल फरमाए, और हमारे जो मुसलमान बहन भाई इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन लोगों की मग़फ़िरत फरमाए या अरहमर राहिमीन। और हम सब की तरफ से और रेहान टीम की तरफ से, मेरी तरफ से और जियो टेलीविज़न की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको खुश व खुर्रम रखे। आप हर साल ईद को बहुत खुशियों के साथ में मनाएं, सेहत और आफियत के साथ में मनाएं, बहुत सारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बरकतों और रहमतों के साथ मनाएं। आमीन। चलने से पहले आपको एक हमारे साथ जुड़ा रहने के लिए कुछ लिंक देके जा रही हूँ। आप हमारे किसी भी चैनल को ज्वाइन करें और अर-रेहान के साथ अपने इल्म का अमली सफ़र शुरू करने के लिए हमारे चैनल्स को ज्वाइन करना ज़रूरी है, ताकि आप जुड़े रहें। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी मसला है, कोई भी बात पूछनी हो, तो आप हमारे इन लिंक्स पे हमें जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जो है वो हमारा AR.रेहान तजवीद के नाम से अकाउंट है। फिर यूट्यूब में भी जो है वो AR रेहान तजवीद के नाम से, और फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं arrayhan.tajweed@gmail.com। और फिर इसके अलावा आप हमारा जो है वो टेलीग्राम का जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है डायरेक्ट हमसे कुछ भी, आपको कुछ भी बात करनी हो, किसी तरह की भी मदद की, एड की ज़रूरत हो, आपको अपने इल्म के लिए किसी भी चीज़ की कोई भी इंक्वायरी हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।